সারা পৃথিবী যত রকম ধর্ম আছে, যত রকম ধর্মমত আছে, বাংলায় এসে কোথায় মনে হয় তার কঠোরতা বা তার সাম্প্রদায়িক রূপ কোথায় যেন মিলিয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। এবং আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশে বিভিন্ন উগ্র মুসলিম গোষ্ঠী আছে, কিছু হুজুর আছে, তারা যেভাবে ধর্মটাকে নতুন মোড়কে মডিফাই করার চেষ্টা করে এবং মানুষের মধ্যে মনের মধ্যে বিষ ঢালার চেষ্টা করে যে অমুসলিমদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক, খাওয়া দাওয়া, সহযোগিতা, নানা রকমের বিষয়, তাদের ধর্মীয় আচরণে না যাওয়া ইত্যাদি নানা রকমের রেস্ট্রিকশন লাগায়, নতুন নতুন ফতোয়া জারি করে, যে কথা হয়তো কোরআনে কোথাও খুঁজেও পাবেন না। কিন্তু ঠিক একই রকম ভারতবর্ষে হিন্দুরা বিভিন্নভাবে আরএসএস দ্বারা পুষ্ট, যারা যারা অন্ধভক্ত, তারাও কিন্তু একই ধরনের নানা রকম ফতোয়া জারি করে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এসে এই রাজনীতিটা, এই ধরনের ধর্মীয় উগ্রতা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এবং এই কারণেই পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘদিন ধরে যখনই কোনো উগ্র মুসলিম বক্তা তৈরি হয়েছে, মুসলিম সমাজ থেকে প্রতিবাদ এসেছে। যখনই কোনো হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে, হিন্দু সমাজ থেকেও কিন্তু প্রতিবাদ এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস খুব একটা সচরাচর চোখে পড়ে না, সেটা হচ্ছে কোনো হিন্দু সমাজের মানুষ খুব উৎসাহে একটা মসজিদ তৈরি করতে টাকা পয়সা দান করছেন, এরকম সাধারণত খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু উল্টো দিকে দিল্লিতে কিছুদিন আগে একটি ঘটনা দেখিয়েছিলাম, যেখানে মুসলিমরা প্রচুর টাকা খরচ করে নিজেরাই মন্দির বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাতেও এরকম অঢেল উদাহরণ রয়েছে। আপনাদের মনে আছে বারাসাতের মতো জায়গায়, যেখানে একটা হিন্দু পরিবার একটা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে সব কিছু তারা করে। কিন্তু এরকমই একটা মন্দিরের খোঁজ পাওয়া গেছে, যেখানে মুসলিমরা রীতিমতো লাখ লাখ টাকা চাঁদা দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করিয়েছেন। এটা ঘটেছে বীরভূমে, এবং এই তথ্যটি তুলে ধরেছেন বিহারের প্রতিবাদী যুবক রবিকান্ত ভারতী। সে পশ্চিমবাংলায় হামেশাই আসছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বাংলার যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বাংলার যে মানবিক মূল্যবোধ, সেটাকে সারা বিশ্বের দরবারে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কারণ তিনি দেখেছেন বিহার, ইউপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যে উগ্র ধর্মীয় রাজনীতি, এবং সেই রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তিনি। এবং বাংলার যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যে মানবিক মূল্যবোধ, সেটাকে কিন্তু বিভিন্ন সময় তুলে ধরেছেন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি সম্প্রতি আমাদের পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলায় গেছিলেন একটা মন্দিরের খোঁজ করতে, এবং সেটা তিনি পেয়ে সেখানে সেটা নিয়ে ভিডিও করেছেন। আপনাদের সেই ভিডিওটা দেখাবো, তিনি সেই ভিডিও মন্দিরটা কীরকম দেখতে এবং কি বলেছেন তিনি। এবং প্রত্যেক অনুরোধ করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, আর ভিডিওটি অবশ্যই প্রচুর শেয়ার করুন। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आइए आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं। इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। ये देख रहे हैं सामने, ये जो मंदिरवा है ना, ये मंदिर बनाने में 10 लाख रुपया का खर्चा लगा है। और 10 लाख रुपया में 7 लाख रुपया का चंदा जो है मुसलमान समुदाय का लोग दिया है। और किस लिए दिया है? क्योंकि ये मंदिरवा पहले रोड पे था और रोड बनते समय मंदिरवा टूट गया, तो हिंदू लोग बोले कि हमें पूजा पाठ करने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे मंदिर बनाने का जब वो लोग बात किए तो 10 लाख रुपया चंदा में 7 लाख रुपया मुसलमान समुदाय के लोग दिए हैं। अब मैं उस चड्डी छाप पत्रकार को बोलना चाहता हूं कि रोड पे जाके कि ये मस्जिद टूट रहा है और इस तरह का वीडियोग्राफी करने में इसको बहुत मजा आता है, तो तुम जो है मजाक बनाते हो। कहीं अगर मस्जिद शहीद होता है तो रोड पे खड़ा होके, लेकिन देखो मुसलमान समुदाय के लोग ने क्या किया। ये मंदिरवा जो है रोड निर्माण में टूट गया था, तो बढ़िया जगह एक ढूंढ के यहाँ पे टोटल 10 लाख का खर्चा हुआ है, जिसमें 7 लाख मुसलमान समुदाय के लोगों ने दिया है। चड्डी छाप पत्रकार का दिन और रात का काम है कि कहीं मजार के सामने खड़ा होकर ड्रामा करना, तो कहीं मस्जिद के सामने खड़ा होकर ड्रामा करना। यह कहीं ना कहीं हम लोगों के हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाना नहीं सिखाता, किसी मजार और किसी मस्जिद का मजाक बनाना नहीं सिखाता। तो इस चड्डी छाप पत्रकार को मैं कहूंगा कि भाई कभी समय निकाल के इस मोहल्ले में आओ। इस मोहल्ले देखो, जिला है बीरभूम, आसनसोल से आओगे तो पास में पड़ेगा। ये जिला है बीरभूम और जगह का नाम है बासापाड़ा। और बासापाड़ा में किसी से पूछोगे काली मंदिर कौन है, जिसमें मुसलमान भी चंदा दे के बनवाया था, तो वो लोग यहीं इसी मंदिर पे लेके आएंगे।
तुम जाते हो गुजरात, तुम जाते हो उत्तर प्रदेश और वहां तुम सरकार की बड़ाई गिनवाते हो और सिर्फ बड़ाई गिनवाते हो। और पश्चिम बंगाल आते हो तो तुम्हें रोड का गड्ढा दिखने लगता है, बिहार आते हो तो रोड का गड्ढा दिखने लगता है। पश्चिम बंगाल में तो तुम कहते हो ममता बानो है और ममता बनर्जी को तुम मुसलमान समर्थक बना देते हो, लेकिन वो ममता बनर्जी जो काली पाठ करती है, जो चंडी पाठ करती है अपने स्टेज से, वह दिखा देती है कि वो सही मायने में रविकांत भारती जिस तरह का हिंदू है वो भी उसी तरह की हिंदू है। कभी बंगाल का ये भाईचारा जो है, जो मुसलमान को बदनाम करते हो दिन और रात बंगाल और कश्मीर के, तो थोड़ा बंगाल में आके इस भाईचारा को क्यों नहीं दिखा देते? इस अगर भाईचारा को दिखा देते तो मैं समझता कि हाँ तुम्हारा पत्रकारिता बहुत अच्छा पत्रकारिता है। तो जगह का नाम मैंने क्या बताया, बीरभूम जिला के बासापाड़ा एरिया में आ जाओ। और ऐसा कोई बंगाल से कोई पहला उदाहरण नहीं है। 4 महीने पहले याद करो जब मैं गया था सुंदरबन, तो सुंदरबन में एक अशरफ अली नामक मुसलमान कन्हैयालाल साहू को अपना किडनी देके और उसका जान बचाया। और जो कन्हैयालाल साहू था, केवल उसी की जान नहीं बची बल्कि उसकी बूढ़ी माँ उस पर डिपेंडेंट थी, उसकी पत्नी डिपेंडेंट थी, छोटा बच्चा डिपेंडेंट था और सभी लोगों के जान में जान आया जब अशरफ अली ने किडनी दिया। तो बंगाल की धरती पे हिंदू मुस्लिम एकता के एग्जाम्पल तुम देखोगे तो हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम गुजरात चले जाओगे, यूपी चलोगे तो बड़ाई बड़ाई गिनवाते तुम्हारा जो है मुंह नहीं थकेगा। और बंगाल आ जाओगे, बिहार आ जाओगे, झारखंड चले जाओगे तो तुम्हारे मुंह से केवल जो है मुसलमान समुदाय के खिलाफ और सरकार के कार्यों के प्रति केवल आलोचना ही निकलेगा। यह किस तरह की भड़वागर्दी कर रहे हो? थोड़ा आओ बंगाल भी घूमो और बंगाल में जो भाईचारा है उस भाईचारा को दिखाओ। और चड्डी छाप के साथ साथ मैं उन अंध भक्त और गोबर भक्तों को भी एक संदेश देना चाहूंगा कि अंध भक्तों, तुम लोग तो ममता बनर्जी को ममता बानो कहते हो और जो कहते हो कि बंगाल में मुसलमान जो है हिंदू पे बहुत हावी है, बहुत अत्याचार होता है, तो थोड़ा देख लो कि बीरभूम का बासापाड़ा का मुसलमान जो है क्या किया है। मुसलमान जो है इस काली मंदिर में 10 लाख रुपया लगा है तो 7 लाख रुपया मुसलमान जो है चंदा दिया है इस मंदिरवा को बनाने में। तो अंधभक्त तुम लोगों को भी जो बुद्धि पे पर्दा पड़ा है ना, यह पर्दा उतारो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इस देश में सदा एक से रहा है और सदा एक होकर रहेगा। एक चंद सरकारें आती हैं और हिंदू मुसलमान को बांटती हैं और तुम लोग जैसे अंधभक्त जो है, गोबर भक्त जो है, बुद्धि के मूढ़ लोग, तुम लोग सोचते हो बहुत अच्छा हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम 500 का तेल और 5000 का गैस भरवा लेंगे और उस चक्कर में तुम लोग पीस रहे हो। चेहरे पे उदासी, बेरोजगारी से कंधा झुक गया है, लेकिन तुम लोगों को हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। तो तुम लोगों को मैं कहूंगा जहां भी शक हो कि कश्मीर का मुसलमान बहुत कट्टर है, बंगाल का मुसलमान बहुत कट्टर है, जहां भी शक हो वहां जाओ, जाके घूमो, मुसलमानों से बात करो, उनके कार्यों को देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा यह सब चुनावी चोचला है, राजनीतिक चोचला है। हिंदू मुस्लिम, भारत में हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। इसलिए तुम गोबर भक्तों को मैं निमंत्रण देता हूं कि बीरभूम के बासापाड़ा एरिया में आओ और भी ज्यादा समय रहे तो सुंदरबन का एक एरिया है उपेंद्र नगर एल प्लॉट, वहां पे भी जाके घूम लो, जहां अशरफ अली ने किडनी देके कन्हैयालाल साहू की जान बचाई, जिससे उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसके बेटे को एक नया जीवन मिला। यह है बंगाल का मुसलमान। और बंगाल कहाँ है? यह धरती जो है भारत में ही है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, यह विवेकानंद की धरती है और यह रामकृष्ण परमहंस की धरती है। इस धरती से ऐसा संदेश देखने को मिलता है। और हमारा बिहार तो बुद्ध और महावीर की धरती है, लेकिन पता नहीं वहां पे कहां से ये नफरतबाज आ गए और क्यों इतना नफरत फैला रहे हैं, इनका क्या मंशा है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी भी मैं नीतीश कुमार जी को कहूंगा कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से वह कहते हैं महात्मा गांधी का देश है, मौलाना कलाम का देश है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मैं नीतीश कुमार को सैल्यूट करता हूं। और सारे बिहारियों से भी मैं कहता हूं कि चड्डी छाप का ओरिजिनल चेहरा पहचानो और सारे देश के लोगों से कहता हूं कि भारत का मुसलमान हमेशा हिंदुओं के साथ खड़ा रहता है, लेकिन यह चंद राजनेता बांट के तुम लोगों को महंगा गैस, महंगा तेल दे रहे हैं और तुम लोगों का बुद्धि जो है घास चरने चला गया है।